Hello everyone, welcome to my YouTube channel Spanshing Academy. How are you all? I hope you all are good. Today in this video we'll cover question number 51 to 60 in a 500 question series. So please everyone comment your answer in a comment box and check your level. So without delay any time, let's begin the class. Question number 51 is life's but a walking shadow. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. These lines are from options are Act 3rd Scene 1st of Macbeth, Act 5th Scene 5th of Macbeth, Act 4th Scene 1st of Macbeth या Act 5th Scene 3rd of Macbeth. What will be the right answer for this question? So right answer will be Act 5th Scene 5th of Macbeth. Life is but a walking shadow. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. These lines are spoken by Macbeth after he hears of Lady Macbeth's death. So these lines are spoken by Macbeth जब वो लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में सुनता है एक्ट 5th सीन 5th में. और मैकबेथ एक फेमस ट्रेजेडी है 5 एक्ट्स में रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि इन्होंने राइट किया था 1606 to 1607 के बीच में, एंड इट इज़ पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623. क्वेश्चन नंबर 52 इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर्स इज नॉट अ कॉमेडी. इनमें से कौन सा प्ले शेक्सपियर का कॉमेडी नहीं है? एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम या एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा. व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? राइट आंसर इज एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा. एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा एक फेमस ट्रेजेडी है इन 5 एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर, जो कि इन्होंने राइट की थी 1606 to 07 के बीच में, और ये जो पब्लिश्ड हुई थी फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623. It is considered one of the Shakespeare's richest and most moving works. और एज यू लाइक इट ये एक फेमस कॉमेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन अ 5 एक्ट, जो कि पब्लिश्ड हुई थी फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 में. एंड ट्वेल्थ नाइट ये एक फाइनेस्ट कॉमेडी मानी जाती है विलियम शेक्सपियर की, जो कि राइट की थी इन्होंने 1602 के समथिंग, एंड ये पब्लिश्ड हुई थी फर्स्ट फोलियो 1623 में. नेक्स्ट वन इज़ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. मिडसमर नाइट्स ड्रीम ये एक फेमस कॉमेडी है इन अ 5 एक्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, और ये पब्लिश्ड हुई थी 1600 में इन अ क्वार्टो एडिशन. Question number 53 is William Shakespeare's Love's Labour Lost was a free adaptation of. Options are The Spanish Tragedy of Thomas Kyd, Menachmi, Chronicles of England by Hollinist या Decameron by Boccaccio. What will be the right answer for this question? Right answer is Menachmi of Plautus. इसमें आएगा of Plautus. लव लेबर लोस्ट एक कॉमेडी है रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन मिड 1590 फॉर आ परफॉर्मेंस एट द इंस ऑफ कोर्ट बिफोर एलिजाबेथ I, और इट वॉज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ मेनाइकमी ऑफ प्लूटस. Question number next is who exclaims in his sonnet that under this carved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone. Options are Ben Jonson, Michael Drayton, John Dryden या William Beach. What will be the right answer for this question? Right answer will be William Beach. विलियम बेस ने सोनेट लिखा है ओन मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स, और ही डाइड इन अप्रैल 1616. In it, he writes, under this carved marble of thine own sleep, rare tragedian Shakespeare sleep alone. और विलियम बेश एक
फेमस इंग्लिश और फॉलोवर माने जाते हैं एडमंड स्पेंसर के। ही वॉज नोटेड फॉर दिस एंजल सॉन्ग विच वॉज रिटन फॉर आइजैक वॉल्टन। Next question is, who describes William Shakespeare as an upstart crow beautified with art feathers? Options are John Lilly, Robert Greene, George Peele या Christopher Marlowe. Right answer will be, क्या होगा इसका राइट आंसर? प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स। राइट आंसर इज रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन का बर्थ हुआ था 1558 और इनकी डेथ हुई थी 1592 में। ये एक बेस्ट इंग्लिश ऑथर के रूप में जाने जाते हैं। ही वॉज वाइडली बिलीव्ड टू कंटेन एन अटैक ऑन विलियम शेक्सपियर, और इन्होंने ही विलियम शेक्सपियर को कहा है एन अपस्टार्ट क्रॉ ब्यूटिफाइड विद आर फीदर्स। Robert Greene was one of the most popular English prose writers of the 16th century and Shakespeare's most successful predecessor in blank verse romantic comedy. Question number next is, in the opening invocation of the Paradise Lost, Obib refers to, options are Spirit, Siloa, Mount Hornet या Anonian. इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी माउंट हॉरेट। पैराडाइज लॉस्ट एक फेमस एपिक माना जाता है जॉन मिल्टन का, जो कि ब्लैंक वर्स में राइट किया गया है और इट वॉज पब्लिश्ड इन 1667। ये पोएम कंसर्न करती है बाइबलिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ मैन और द टेम्पटेशन ऑफ एडम एंड ईव बाय द फॉलन एंजल्स सैटर्न। और जो ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, ओबेब और सनाई रेफर्स टू माउंटेन होरेब। सो जॉन मिल्टन की अगर बात की जाए, ये एक फेमस इंग्लिश पोइट माने जाते हैं एंड पोलीमिसिस्ट, द मैन ऑफ द लेटर्स एंड सिविल सर्वेंट फॉर द कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर इट्स काउंसिल ऑफ स्टेट। Which of the following is mismatched with the reference to John Milton works? Options are of Education 1644, Areopagitica 1647, Lycidas 1637 या Paradise Lost 1667। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी एरोपैगिटिका 1647। एरोपैगिटिका ये 1647 में पब्लिश नहीं होकर ये हुआ था 1644 में पब्लिश्ड, और ये एक फेमस प्रोज वर्क है ऑफ जॉन मिल्टन। एरोपैगिटिका इज अमंग हिस्ट्री मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पैशंट फिलोसॉफिकल डिफेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और अगर बात की जाए ऑफ एडुकेशन, ये रिप्रेजेंट करता है जॉन मिल्टन का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑन एजुकेशनल रिफॉर्म एंड गिव्स द वॉइस टू हिज व्यू कंसर्निंग द बेस्ट एंड नोबलेस्ट वे ऑफ एजुकेशन। लिसिडास 1637 में ही राइट किया गया था, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में। 1637 में पब्लिश्ड हुआ था, पैराडाइज लॉस्ट 1667 में, ऑफ एजुकेशन 1644 में, और एरोपैगिटिका जो कि रॉन्ग है ये भी पब्लिश्ड हुआ था 1644 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन कंटेन्स। जो फेमस एपिक है जॉन मिल्टन का वो कितनी बुक कंटेन करता है? 16 बुक्स, 12 बुक्स, 10 बुक्स या 14 बुक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? एवरीवन आंसर प्लीज इन कमेंट बॉक्स एंड चेक योर लेवल। राइट आंसर विल बी 12 बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट एक फेमस एपिक है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया है बाय जॉन मिल्टन, और ये ओरिजिनली इश्यूड हुआ था इन 10 बुक्स। जो इशू हुआ था ये 10 बुक्स में 1667 में, एंड विद बुक्स 7 एंड 10 इच स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 12 बुक्स में इन द सेकंड एडिशन ऑफ 1674। सो जो सेकंड एडिशन था जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1674 में, उसमें थी 12 बुक्स, और जब ये
ओरिजिनल इशू किया गया था उसमें थी 10 बुक्स जो कि पब्लिश हुआ था 1667 में। पैराडाइज लॉस्ट बताता है एक बाइबलिकल स्टोरी को जिसमें फॉल बताया गया फ्रॉम ग्रेस ऑफ एडम एंड ईव। जो मेन कैरेक्टर्स हैं इन दिस पोएम आर गॉड, लूसीफर, एडम एंड ईव। Question number 59 is a little we see in nature that is ours is a line from options are Tintin Abbey, Immortality or Daffodil या The world is too much with us। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी The world is too much with us। जो ये लाइन है लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स, ये लाइन ली गई है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से। ये एक फेमस सोनेट माना जाता है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और इसमें ये कॉन्ट्रास्ट करते हैं नेचर विद वर्ल्ड। और ही रिवील्स दैट वाइल पीपल स्पेंड देयर टाइम इन एक्वायरिंग वर्ल्डली पोजेशंस, the true beauty of the earth cannot be on very few things that people see in nature actually belongs to them। और I wandered lonely as a cloud, जिसको डैफोडिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ये एक फेमस लिरिक पोएम मानी जाती है विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1807। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। कितने वॉल्यूम में? इन 2 वॉल्यूम्स। लास्ट क्वेश्चन इज वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो बॉर्डर्स हैं ये किस कैटेगरी में आता है? प्रोज ट्रेजेडी में, एपिक में, वर्स ट्रेजेडी में या ओड में? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी वर्स ट्रेजेडी। जो बॉर्डर्स है ये एक वर्स ट्रेजेडी है रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि सेट होता है ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी III ऑफ इंग्लैंड, व्हेन इंग्लिशमैन इन द नॉर्थ कंट्री केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द स्कॉटिश रवर्स।